Dear student, in this lecture, we are going to learn a data type in C programming language. So there are a lot of data type. So see here, and no need to remember the range. आपको range याद करने की जरूरत नहीं है. We will find this range by using the formula. So you have to remember that character size in byte is 1 byte. Character size in byte is 1 byte. So this is 1 byte. In the same way, range will be minus 128 to 127. So you remember that character size in byte, that will be the 1 byte. And the same way, इसी तरीके से एक इंटीजर होता है, तो इंटीजर का साइज जो है 2 बाइट होता है. ओके, सो 2 बाइट में 16 बिट हो जाएंगे. 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट. 1 byte equal to 8 bit. Okay, so the range for the integer will be minus 32768 to 32767. So you remember this character, and for the integer, and there will be a float. So for the float, the size of the data type in byte will be 4. So in this time you remember these 3 things. And how this range come, we will derive in some other place, in some other class. So see here, there are 3 parts of the basic data type. So the first is integer, second is character, the third is float. Data type जो होते हैं वो basic 3 तरह के होते हैं, integer, character and float. So now the integer is divided into 2 types. इंटीजर को फिर से 2 बार में डिवाइड किया गया है. कौन सा है? सी हियर, फर्स्ट इज शॉर्ट इंटीजर. इंटीजर के 2 पार्ट हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर. ये इंटीजर का 2 पार्ट हो गया, दैट इज शॉर्ट इंटीजर एंड लॉन्ग इंटीजर. सो इसके बाद जो है शॉर्ट इंटीजर जो है ये फिर से 2 पार्ट में डिवाइड होगा. ठीक है, कौन कौन होगा देखिए. So the short integer is again divided into 2 types. So see here, that is called signed short int, signed short int, and the next and the other is unsigned, unsigned short int. ये 2 तरह से इंटीजर को डिवाइड कर दिया गया, जैसे साइंड शॉर्ट इंट एंड अनसाइंड शॉर्ट इंट. सो द साइंड शॉर्ट इंट जो होगा वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों वैल्यू को स्टोर करेगा, और जो अनसाइंड शॉर्ट इंट होगा वो केवल पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेगा. ओके, जो साइंड शॉर्ट इंट है दैट विल बी स्टोर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, एंड अनसाइंड शॉर्ट इंट जो है वो केवल आपका अनसाइंड है, मींस देयर इज नो साइन, सो केवल पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करेगा. अब देखिए, सो जो साइंड शॉर्ट इंटीजर होते हैं, ओके, तो इंटीजर 2 बाइट लेते हैं. ओके, वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस टाइम. सो इंटीजर विल टेक 2 बाइट. ओके, सो range, how to find range? That range will be it is given that minus 32768 to plus, okay, 32767. So how this range comes? Okay, so you have to remember one formula that will describe in the
subsequent class or in some subsequent semester. So the range of one's complement, that will be minus of 2 to the power n minus 1 minus 1 to 2 to the power n minus 1. Okay, so see here, it will becomes minus of 2 to the power n minus 1 minus 1 to 2 to the power n minus 1 with positive sign. So suppose that we want to find the range for this integer, how it comes, और फर्स्ट वी आर फाइंडिंग फॉर द कैरेक्टर. सो कैरेक्टर के लिए 8 बिट होता है. 8 बिट मतलब 1 बाइट. 1 बाइट हो गया. सो इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे 8. ठीक है, n के इन प्लेस ऑफ n. सो माइनस 2 टू द पावर 8 माइनस 1 minus 1 2 like this. So you will get minus of 2 to the power 7 minus 1 to 2 to the power 7. So minus 127. Okay, to 128. Minus of 127 to 128. Is this okay? No, this is not okay. 2 to the power 7, and that will be here. Minus of 2 to the power 7 is 128. Okay. Okay, there is a mistake here. You just make correction. This is not negative sign. Okay, it will comes to minus 1 will be here. Okay, so this remove and minus 1 will be here. So 1 will be subtracted. So now it becomes correct. So minus of 128 to 127. So here what we are doing, we are writing the formula for the minus of 2 to the power n minus 1 to 2 to the power n minus 1 minus 1. So this is a 2's complement representation. This is a 2's complement representation. 2's complement representation. Okay. So now I am just showing once again. So data type in C, it is basically divided into the 3 types, that is integer, character and float. Okay. Now integer is divided into 2 types, that is short int and long int. Okay. Now short int is divided into 2 types, that is signed short int and unsigned short int. नाउ साइंड शॉर्ट इंट जो है वो 2 तरह के वैल्यू को लेंगे, प्लस माइनस दोनों, और अनसाइंड शॉर्ट इंट जो होंगे वो केवल पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे. अब मैंने रेंज को कैसे निकालते हैं इसके लिए मैंने इसके लिए मैं इधर को बता रहा हूँ फिर से. ओके, सी हियर हाउ टू फाइंड द रेंज. ओके, सो सी हियर फर्स्ट आई एम राइटिंग फॉर कैरेक्टर. तो कैरेक्टर के लिए कितना लेता है, 1 बाइट लेता है. Okay, equal to 8 bit. Okay, so the formula is, what is formula? That will be the minus of 2 to the power n minus 1 to, okay, with positive sign. So जो 8 बिट है यहाँ पर 8 बिट, इसको n के प्लेस पर रखना है. तो 2 to the power 8 minus 1. Okay, 2 plus, okay, 2 to the power 8 minus 1 minus 1 like this.
सो देखिए 2 माइनस ऑफ 2 टू द पावर 7 2 प्लस ऑफ 2 टू द पावर 7 माइनस 1, इस तरह का आया। अब देखिए सो 2 टू द पावर 7 कितना होगा, माइनस 128 2, और कितना होगा प्लस 127। ठीक, साइज कितना था कैरेक्टर का, 1 बाइट, साइज 1 बाइट। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर मतलब जब प्रिंट करना होगा तो फॉर्मेट स्पेसिफायर विल बी परसेंटेज सी। ओके, साइज 1 बाइट, range minus 128 to 127. Now everything is clear. So in this way you can find the range of the data type. So for the character you have to apply this formula. So now I am showing you for the integer. So see here. So for integer part, integer का size कितना होता है डेटा टाइप का, 2 बाइट, 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट। तो रेंज कितना होगा, सो रेंज के लिए फॉर्मूला जो होगा with negative sign 2 to the 10 minus 1 2, with positive sign 2 to the power minus 1 with 1. So minus 16 minus 1 2 plus 16 minus 1 minus 1. So minus 2 to the power 15 2 plus 2 to the power 15 minus 1. So once you find the 2 to the power 15, you will get minus 32 768 2 plus 32 7 6 7। साइज कितना होगा, तो ये क्या हो गया, दिस विल बी द रेंज, किसका रेंज, इंटीजर का रेंज हो गया। साइज कितना होगा इंटीजर का, साइज इक्वल टू 2 बाइट, 2 बाइट इक्वल टू 8 बिट, 2 बाइट इक्वल टू 16, 2 बाइट इक्वल टू 16 बिट। ओके, फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा इसका, मीन्स जब हमको इंटीजर प्रिंट करना होगा तो कैसे प्रिंट करेंगे, देखिए फॉर्मेट स्पेसिफायर, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो होगा परसेंट डी होगा। ओके, परसेंट डी होगा, बट परसेंट आई भी होगा, ठीक है, परसेंट ओ भी होगा, परसेंट एक्स भी होगा, ये सब आगे बताया जाएगा, ठीक है, परसेंट कैपिटल एक्स भी होगा, स्मॉल एक्स भी होगा। अब देखिए ये तो हो गया आपका रेंज, ये वाला रेंज हो गया इंटीजर का, और उधर कैरेक्टर का हो गया। अब देखिए ये जो रेंज मैंने बताया ये किसका था, साइंड इंटीजर का था, साइंड शॉर्ट इंटीजर का था। अब मान लीजिए अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर होगा, तो जब अनसाइंड होगा, अनसाइंड शॉर्ट इंटीजर, ओके, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो बदल जाएगा। सो इसका जो रेंज हो जाएगा 0 to 65535, और जो साइज होगा वो तो 2 बाइट ही होगा, मतलब 16 बिट होगा, और स्पेसिफायर बदल जाएगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर ये हो जाएगा परसेंट यू, ये अनसाइंड है, और पहले जो बताए थे हम वो साइंड के लिए था। सो इफ वी राइट, यदि हम लिखते हैं, ये हो गया रेंज फाइंड करने का तरीका। सो यदि हम लिखते हैं कि इंट आई, ओके, इंट आई जनरली, सो इसका मतलब होता है शॉर्ट इंट आई generally. Okay, if we are writing int I, so generally it is treated as a short int I, और बाय डिफॉल्ट ये जो शॉर्ट दो तरह के होते हैं, साइंड और अनसाइंड, तो ये बाय डिफॉल्ट साइंड होंगे। ओके, साइंड शॉर्ट
int I। सो ये बाय डिफॉल्ट ये समझा जाएगा। So in C programming, size of all type except character are system dependent। So इस तरह से आप range find कर सकते हैं। In this way you can। So now you see here we have character। So the character have 1 byte। कैरेक्टर का जो डेटा टाइप का साइज होता है वो हमने 1 बाइट बताया। सो इसका जो रेंज है -128 to 127 हो गया। कैसे आया? recap the video again। you have to use formula। ओके अब देखिए इंटीजर का 2 बाइट होता है तो 2 बाइट मतलब 16 बिट। तो इसके लिए रेंज ये वाला आ गया। कैसे आया? recap the video। अब देखिए फ्लोट का जो है ये 4 बाइट होता है तो आप ये लिख सकते हैं। ओके या 4 बाइट से जो भी आपका कैलकुलेशन आएगा वो लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए आपको हायर क्लासेज में, नेक्स्ट क्लासेज में या सम सब्सिक्वेंट क्लास में आपको बताया जाएगा कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो वहां से आपको ये समझ में आएगा। फिलहाल आपको रेंज जो है कैरेक्टर याद रखना है, इसको याद करिए, इसको आपको याद रखना है, और इंटीजर का याद रखना है, ये 2 का याद रखना है, और इसको याद नहीं रखना है, इसको नहीं याद करना है। सो 2 का रेंज आपको अभी याद करना है। सो इस तरह से आप कैरेक्टर और इंटीजर का रेंज फाइंड कर सकते हैं, और इनका रेंज यू कैन रिमेम्बर दी हाउ मच दी विल बी द रेंज। Okay, so thank you for attending this lecture, and to continue the next lecture you attend the next video in the subsequent video.